Before I start explaining anything, I'll just play a video. बहुत ध्यान से देखो उसको. If you want, फिर से चलाएंगे वो video. It's going to clear all your concept. It's a very nice video which will show you what is happening during conduction of the nerve impulse. Chemical and electrical disturbances created by a stimulus in a neuron. The conduction of the nerve impulse can be divided into two main phases: resting membrane potential and action membrane potential. Neurons are excitable cells. They may be stimulated by physical, mechanical, chemical, or electrical stimuli. The nerve fiber or axon is covered by a neural, axonal or plasma membrane. The neural membrane has sodium and potassium ion channels called voltage-gated or regulated channels. These channels open or close according to the electric potential across the membrane. The ion channels of the resting membrane are differentially permeable to ions at different rates. It is more permeable to potassium ions, almost impermeable to sodium ions, and totally impermeable to the negatively charged proteins of the axoplasm. Therefore, the axoplasm inside the axon contains a high concentration of potassium ions, negatively charged proteins, and a low concentration of sodium ions. On the contrary, the extracellular fluid outside the axon contains a low concentration of potassium and a high concentration of sodium. This differential permeability is maintained by a sodium-potassium pump present inside the membrane. The sodium-potassium pump transports 3 sodium ions outside the cell for every 2 potassium ions that enter the cell. This electrical potential difference across the membrane in an unexcited nerve fiber is called resting potential, and the neuron is called a polarized nerve fiber. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, when a stimulus is applied to a site, say A, on the polarized membrane, the sodium ion channels open and the membrane at the site becomes freely permeable to sodium ions. This leads to a rapid influx of sodium ions that reverses the polarity of the site. That is, the outer surface of the membrane becomes negatively charged and the inner surface becomes positively charged. This reversal of polarity across the two sides of the membrane is called depolarization. The electrical potential difference across the plasma membrane at site A is called the action potential. This action potential travels as a wave of depolarization along the length of the nerve fiber in a particular direction and is called the nerve impulse. At site B, the axon membrane has a positive charge on the outer surface and a negative charge on the inner surface. As a result, a current flows on the inner surface from site A to site B. On the outer surface, a current flows from site B to site A to complete the circuit of current flow. This reverses the polarity at the site, and an action potential is generated at site B. Thus, the impulse generated at site A
arrives at site B. The sequence repeats along the length of the axon for the impulse to be conducted. At the peak of action potential, the permeability of the membrane to sodium ions decreases, while it becomes more permeable to potassium ions. This is because sodium channels start closing and potassium channels start opening. However, this part of the membrane regains its original polarity within milliseconds, and this phenomenon is called repolarization. A repolarized nerve fiber undergoes a refractory period of a few milliseconds, during which the original ionic distribution is restored by a sodium-potassium pump, which actively transports sodium ions outward and potassium ions inward. This returns the membrane to its resting potential, and the neuron is ready to receive another stimulus. 22 years. That's how long I'm committed to personal growth. या तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? चलो क्विकली Yes, नाउ ma'am. विथ मी टेक अ पेन एंड अ पेपर, जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हो वहाँ पे फटाफट डायग्राम्स करेंगे, बिकॉज डायग्राम्स से ही आपको समझेगा. योर फर्स्ट पेज विल बी पोलराइज्ड नर्व या रेस्टिंग नर्व. See if you can see the board. चलो अब मुझे बोलो बाहर क्या रहेगा अंदर क्या रहेगा. क्विकली एनी वन ऑफ यू, कौन बताएगा? अंदर पोटेशियम आयंस और बाहर सोडियम. यस गुड. अंदर पोटेशियम ज़्यादा, बाहर सोडियम. ऑल राइट. अंदर का चार्ज नेगेटिव, बाहर का चार्ज पॉजिटिव. यस. अंदर और क्या रहेगा पोटेशियम के अलावा? और क्या रहेगा? Negative proteins. Negative proteins. Okay. So negative proteins are going to be there. Who is going to maintain this polarity? NaK, ATP. सोडियम पोटेशियम पम्प. Yes. Sodium, potassium, ATPase pump. So MCQ. रेस्टिंग फेज पे कौन सा पंप काम करता है सबसे ज़्यादा, या कौन सा पंप एक्टिव रहता है रेस्टिंग फेज पे? Sodium, potassium, ATPase pump. It is going to throw 3 sodium out, 2 potassium inside, and it is going to maintain this polarity. Also, the membrane is going to be slightly permeable to potassium over here, but nearly impermeable to sodium and impermeable to these negatively charged proteins. This is all you need to know about the resting phase. Now come to depolarization. एक स्टिमुलस जब आएगी, रेस्टिंग फेज पे -70 मिलीवोल्ट्स रहता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ है. नाउ ऑन द अराइवल ऑफ अ स्टिमुलस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द सोडियम चैनल इज गोइंग टू ओपन. सो सोडियम चैनल को आप हमेशा ऐसे बनाओ, अंदर होगा. अब क्या अंदर बढ़ जाएगा? सोडियम. सोडियम एंड उसके साथ पोटेशियम भी अंदर लॉक हो गया है, बिकॉज द पोटेशियम चैनल हैज क्लोज्ड. एंड द सोडियम पोटेशियम ATPase पंप इज इनएक्टिव टेम्पररीली. जब स्टिमुलस आती है सोडियम पोटेशियम पंप इनएक्टिव हो जाएगा. सो ये फेज में कौन सा पंप काम कर रहा है? सोडियम. जब स्टिमुलस आती है सोडियम चैनल काम कर रहा है. इसको हम पंप नहीं बोलते हैं, बिकॉज जब हम पंप बोल रहे हैं वी विल से दैट एनर्जी लग रही है. आपके घर में, हाँ बोलो. Influx of sodium. Influx of sodium, yes. Sodium channel will open, there will be influx of sodium. पोटेशियम भी बाहर नहीं जा पा रहा है, तो at this site अंदर की परमिएबिलिटी पॉजिटिव हो जाएगी, बाहर की नेगेटिव हो जाएगी at this site A. अब यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो ये इसको यहाँ जाके पॉजिटिव बनाएगा. बाजू में यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है पूरा अंदर, दिस पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू गो एंड अट्रैक्ट दिस एंड गोइंग टू मेक इट पॉजिटिव. दैट इज हाउ
इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल जो एक साइड पे जनरेट हुआ है, इट इज गोइंग टू ट्रैवल अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन टिल इट रीचेज द सिनेप्टिक नॉब, टिल इट रीचेज द सिनेप्टिक नॉब. सिनेप्टिक नॉब पे ये कैसे ट्रैवल करेगा, दूसरे न्यूरॉन के पास कैसे जाएगा, बोलो. सिनेप्टिक नॉब पे कैसे ट्रैवल करेगा? हाउ विल इट गो टू द अदर न्यूरॉन? डू यू रिमेंबर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स? यस मैम. हाँ, सो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में तो डायरेक्टली जाएगा गैप जंक्शंस के थ्रू, बट केमिकल सिनेप्स में जब इम्पल्स सिनेप्टिक नॉब पे पहुंचती है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्टिमुलेशन मिलता है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जाके फ्यूज होते हैं. सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं. इफ यू रिमेंबर, we will revise that part also, but let us come to this part again. So this is called depolarization. It is called reversal of polarity. साइट ए पे पोलैरिटी रिवर्स हुई है, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया है, तो कंपैरिजन में बाहर का इन्वायरमेंट नेगेटिव हो जाएगा. दिस इज ऑलवेज कंपैरेटिव नेट चार्ज. सो अंदर का ज़्यादा पॉजिटिव हो गया तो बाहर का नेगेटिव हो जाएगा. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब एक एक साइड से जब इम्पल्स ट्रैवल हो चुकी है, हमारा स्टिमुलस का काम हो गया है, जो भी स्टिमुलस था ये न्यूरॉन ने ये काम कर दिया है, उसको पहुंचा दिया है टुवर्ड्स द ब्रेन थ्रू different neurons in the path. Now this neuron, this nerve has to come back to its original phase to be ready to receive a stimulus again. एक काम अगर हो गया, हमारी अगर एक एक्टिविटी हो गई, तो हम वापस आके अपनी ओरिजिनल फेज पे बैठ जाते हैं. जैसे अगर मैंने आपको कुछ बोला कि ये बुक यहाँ से वो टेबल पे रख के आओ, यू विल डू दैट एक्टिविटी एंड कम एंड सिट बैक इन योर ओरिजिनल प्लेस. हमारी ओरिजिनल प्लेस कौन सी है? ये वाली, रेस्टिंग वाली, जो मेरी पोलराइज स्टेट है. अभी डीपोलराइजेशन की फेज में रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी है. नाउ आई हैव टू ब्रिंग द नर्व बैक टू द रेस्टिंग पोटेंशियल ताकि इट इज़ रेडी टू रिसीव द स्टिमुलस अगेन. दैट मीन्स फिर से रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का होगा, जिसको हम बोलेंगे रीपोलराइजेशन. वी विल कॉल इट रीपोलराइजेशन. इन द फेज ऑफ रीपोलराइजेशन कौन से चैनल्स ओपन होंगे, बोलो. पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे. सोडियम चैनल्स अब क्लोज हो जाएंगे बिकॉज स्टिमुलस ख़त्म हो गई है. जो भी स्टिमुलस थी, जो भी ऑर्डर मिला था, वो ख़त्म हो गया है. एक एक साइड से जब वो पास हो गया है तो सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे, ये क्लोज हो जाएंगे. पोटेशियम चैनल्स ओपन होने की वजह से बाहर पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा, तो बाहर नेट चार्ज पॉजिटिव होता जाएगा और कंपैरिजन में अंदर का चार्ज नेगेटिव होगा. बाहर नेट चार्ज पॉजिटिव होगा, कंपैरिजन में अंदर का चार्ज नेगेटिव होगा. हाँ बोलो, बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? सो नाउ अगेन टू कंप्लीट द सर्किट, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ वाले नेगेटिव को अट्रैक्ट करता जाएगा. ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. अभी हमारी इम्पल्स अलोंग द एक्सॉन ट्रैवल कर रही थी बिकॉज हमको सिग्नल पहुँचाना है. मैंने बोला कि सेंसरी न्यूरॉन्स जब सिग्नल लेके जाते हैं ब्रेन के पास, इट्स लाइक अ रिले रेस. एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन को देना है सिग्नल, दूसरे को तीसरे को देना है, थर्ड को फोर्थ को देना है, ऐसे करके ब्रेन तक पहुंचता है स्टिमुलस या सिग्नल. सो अब जैसे जैसे एक एक न्यूरॉन से क्रॉस होता जाएगा एक एक साइड से, उस साइड को वापस आना है अपने ओरिजिनल फेज में. उस साइड को वापस आना है अपने ओरिजिनल फेज में. तो इन द फेज ऑफ रीपोलराइजेशन द पोटेशियम चैनल्स आर गोइंग टू ओपन. पोटेशियम का इफ्लक्स होगा बाहर. ऑल दीज आर MCQs. पोटेशियम का इफ्लक्स होगा रीपोलराइजेशन में. रीपोलराइजेशन में जो चैनल एक्टिव रहेगा, जो काम कर रहा है, वो है पोटेशियम चैनल. सोडियम चैनल क्लोज हो गया है. अब रीपोलराइजेशन किसकी वजह से हुआ है, बताओ मुझे. रीपोलराइजेशन कौन से आयन की वजह से हुआ है? पोटेशियम. यस. एक्शन पोटेंशियल कौन से आयन की वजह से जनरेट हुआ था? सोडियम. कंडक्शन कौन से आयन की वजह से हो रहा था? सोडियम. बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है अलोंग द एक्सॉन. ये सारे MCQs हैं. फिर से सुनो. एक्शन पोटेंशियल सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से जनरेट हुआ. डीपोलराइजेशन सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से हुआ. कंडक्शन सोडियम की मूवमेंट की वजह से हो रहा है. ये पॉजिटिव चार्ज फटाफट ट्रैवल कर रहा है अलोंग द एक्सॉन.
रीपोलराइजेशन पोटेशियम की मूवमेंट की वजह से हो रहा है, सोडियम की मूवमेंट की वजह से नहीं. Repolarization is because of efflux of potassium. Depolarization is because of influx of sodium. Resting membrane potential is maintained because of sodium potassium ATPase pump, which is going to use ATP and it is going to maintain this outside sodium more, inside potassium more. अब repolarization में ये होने के बाद is my nerve ready in the polarized state to conduct an impulse? No. Why? Why is it not ready? Charge reversal हो गया ना. Resting Sodium position is out more and एक्सोप्लाज्म को नेगेटिव होना चाहिए. एक्सोप्लाज्म नेगेटिव हो गया ना repolarization में. no अंदर ma'am का because potassium is out and sodium is in. Ionic Yes. balance is not maintained. repolarization तो balance हो is not गया है. maintained. yes repolarization तो हो गया है. पोलैरिटी वापस मिल गई है मुझे. अंदर नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज. बट मेरा आयन बैलेंस रिस्टोर नहीं हुआ है. मेरा आयन बैलेंस कैसा चाहिए मुझे? सोडियम बाहर चाहिए ज़्यादा और पोटेशियम चाहिए अंदर ज़्यादा. रीपोलराइजेशन में मेरी पोलैरिटी तो मेंटेन हो गई है बट मेरा आयन बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ है. अब ये फेज फिर से रेस्टिंग पे है तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप फिर से काम करेगा. सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप सोडियम को डालेगा बाहर और पोटेशियम को डालेगा अंदर. अगेन रिस्टोर करेगा. ये मेरा फर्स्ट फेज जो कि मेरा पोलराइज स्टेट है, जो मेरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है. सो रीपोलराइजेशन होता है इफ्लक्स ऑफ सोडियम की, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम की वजह से. पोलैरिटी चेंज होती है इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम की वजह से, पर ये सिर्फ चार्ज चेंज हो रहा है. आयन बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है. वापस आयन बैलेंस को मेंटेन करेगा मेरा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप. बिकॉज व्हेन द स्टिमुलस इज नॉट देयर, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इज गोइंग टू बी एक्टिव. अब ये स्टिमुलस पास हो गई है यहाँ से. डीपोलराइजेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हो गया है. रीपोलराइजेशन में नर्व वापस आ रही है अपने ओरिजिनल फॉर्म पे ताकि इट इज़ रेडी, सो दैट इट इज़ रेडी टू रिसीव अ स्टिमुलस अगेन. अनलेस एंड अनटिल ये वाला फेज वापस रिस्टोर नहीं होगा, बाहर चार्ज पॉजिटिव अंदर चार्ज नेगेटिव और बाहर सोडियम ज़्यादा और अंदर पोटेशियम ज़्यादा, नर्व इज़ नॉट गोइंग टू बी रेडी टू रिसीव द नेक्स्ट स्टिमुलस. क्योंकि स्टिमुलस रिसीव होने पे क्या होगा? बाहर का सोडियम अंदर आएगा. उसके लिए मुझे सोडियम बाहर ज़्यादा लाना पड़ेगा. हमारी पोलराइज स्टेट ऐसी है कि जहाँ पे सोडियम बाहर ज़्यादा रहेगा. सो ये आयोनिक बैलेंस आफ्टर रीपोलराइजेशन उसको मेंटेन करेगा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, उसको वापस लाएगा वो वाले आयोनिक बैलेंस पे. नाउ यू टेल मी वन थिंग, जब इम्पल्स कंडक्ट हो जाएगी तो वापस से रीपोलराइज होके और आयोनिक बैलेंस वापस मेंटेन करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा. सम सेकेंड्स विल बी रिक्वायर्ड, सम मिली सेकेंड्स. येस और नो टू डू दिस? Yes ma'am. Yes. Yes ma'am. So that period is called refractory period. That period is called refractory period. लिखो refractory, REFRAC, refractory period. This is the time when nerve is coming back. It is retaining its original polarized state. It is coming back to its original polarized state so that it is ready to receive a stimulus. तो ये रिफ्रैक्टरी पीरियड वो टाइम है जब नर्व का वापस रीपोलराइजेशन हो रहा है और वापस आयोनिक बैलेंस का मेंटेनेंस हो रहा है. इस टाइम पे नर्व दूसरा स्टिमुलस रिसीव नहीं कर सकती है. कॉमन एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. जैसे मैंने आपको बोला कि ये बुक यहाँ से ये टेबल से लेके दूसरे रूम में दूसरे टेबल में रख के आओ. जब तक ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती है, अगर आपने ऑलरेडी ये एक्टिविटी चालू कर दी है, जब तक आप ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं करते हो आप दूसरी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो. As soon as you are done with that activity, you can follow the next order. So that is what is going to happen. तो ये जो fraction of milliseconds होते हैं, when the nerve is restoring its original polarized state, it is restoring its original resting membrane potential, so that it is ready to receive the stimulus again, और ये पूरा cycle फिर से हो. This is called the refractory period. रिफ्रैक्टरी पीरियड के लिए बस हमको इतना ही समझना है, बिकॉज MCQs में आइदर यू विल गेट व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड या फिर ये वाला सेंटेंस रहेगा, द टाइम इंटरवल व्हेन द नर्व इज रिटेनिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट विल बी कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड.
and during this time nerve will not be ready to receive any new stimulus. During this time the nerve will not be ready to receive any new stimulus. This will be the refractory period. ऑल राइट, अब आप मुझे बताओ कि ये -70 से यहाँ पे कितना आता है पोटेंशियल? +30 to 35. Yes. Some books will give you +30, some books will give you +35, some may also give you +40. So 30 से 40 की रेंज याद रखो. ये वाला वैल्यू NCERT टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, so that we can directly follow that one value. So you remember the range of +30 to +40, whatever will be in the MCQ option उसको आप चूज करोगे. All right. And then जब ये वापस नेगेटिव पे आ रहा है, जब वापस नेगेटिव पे आ रहा है, रीपोलराइजेशन जो मेरी फेज है उसमें अंदर वापस नेगेटिव आता है, तो ये कितने नेगेटिव पे आएगा वापस? कितने नेगेटिव पे आएगा वापस? -70. हाँ, 70. ये -70 पे आना चाहिए, -70 पे आना चाहिए. लेकिन जब ये रीपोलराइजेशन होता रहता है, जब मेरा पोटेशियम चैनल खुला हुआ है, तो बहुत सारा पोटेशियम इफ्लक्स बाहर होता जाता है, तो अंदर का चार्ज -70 से और गिर के -90 पे आ जाता है. बिकॉज पोटेशियम चैनल क्लोज नहीं हुआ है टाइम पे. पोटेशियम गेट एक बार खुल गया, ध्यान से सुनो, पोटेशियम गेट एक बार खुल गया तो उसको क्लोज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. उस चक्कर में क्या होता है कि बाहर का चार्ज और ज़्यादा नेगेटिव में जाता है, तो ये -90 मिलीवोल्ट हो जाता है. दिस -90 मिलीवोल्ट जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी ज़्यादा नेगेटिव हो गया है नर्व, उसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन. आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन दिस टर्म हाइपर पोलराइजेशन ऑल्सो. अब समझना है, पोलराइजेशन वॉज -70, हाइपर पोलराइजेशन बोल रही हूँ, मतलब -70 से और ज़्यादा नेगेटिविटी होगी अंदर, हाइपर पोलराइजेशन. सो इट्स गोइंग टू गो टू -90. फिर इसको कौन रिस्टोर करेगा? पोटेशियम को अंदर डालेगा, बाहर ज़्यादा सोडियम डालेगा, और -70 पे कौन लाएगा? सोडियम पोटेशियम. हाँ, तो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप ये मेरा आयोनिक बैलेंस मेंटेन करेगा, और ये जो हाइपर पोलराइज हो गया है मेरा नर्व मेम्ब्रेन, उसको वापस -70 पे भी लेके आएगा. तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स लगेंगे नर्व को वापस अपने पोलराइज स्टेट में लाने में, एट दिस टाइम द नर्व इज़ नॉट गोइंग टू बी रेडी टू रिसीव द सेकेंड स्टिमुलस. इस पीरियड को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड. अब मुझे बताओ हाइपर पोलराइजेशन कौन से आयन की वजह से हो रहा है? सोडियम पोटेशियम. पोटेशियम इफ्लक्स की वजह से. मेरा रीपोलराइजेशन पोटेशियम इफ्लक्स की वजह से हो रहा था ना, तो रीपोलराइजेशन में ही अंदर का नेगेटिव होता जा रहा है ना, बाहर का पॉजिटिव होता जा रहा है. तो अगर ये पोटेशियम चैनल क्लोज नहीं हुआ -70 पे, तो अंदर का और नेगेटिव होता जाता है. तो मेरा हाइपर पोलराइजेशन भी पोटेशियम इफ्लक्स की वजह से हो रहा है. पोटेशियम चैनल क्लोज होते 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 अंदर का चार्ज -90 तक चला जाता है बहुत बार. इस फेज को हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन. हाइपर पोलराइजेशन. अब इसको कैसे याद रखते हैं? हम याद रखते हैं कि पोटेशियम चैनल्स ये बहुत स्टबन चैनल्स हैं. ये एक बार खुल गए तो ये बंद नहीं होते हैं, बंद होने में बहुत टाइम लगाते हैं. बिकॉज ये ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं बंद होने में, नर्व -70 पे पहुंच के और नेगेटिव पे हो जाती है, इतना पोटेशियम बाहर जाता जा रहा है. सो हम इस फेज को बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन. वाई हाइपर पोलराइजेशन? बिकॉज मेरा पोलराइज स्टेट -70 है. एनीथिंग मोर नेगेटिव देन दिस विल बी हाइपर. सो ये हाइपर पोलराइजेशन होगा. सो रीपोलराइजेशन हो रहा है मेरे पोटेशियम इफ्लक्स की वजह से, हाइपर पोलराइजेशन भी हो रहा है पोटेशियम इफ्लक्स की वजह से. डीपोलराइजेशन किसकी वजह से हो रहा है? डीपोलराइजेशन इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम इन्फ्लक्स की सोडियम वजह से. इन्फ्लक्स. ऐसे ही MCQs आते हैं. विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन? बोलो. इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम. यस. सोडियम. Which ion is responsible for repolarization? Repolarization. Potassium. Influx of potassium. Yes. What is responsible for hyperpolarization? Also potassium. Influx of potassium. Potassium. Yes.
What is responsible for conduction of the impulse? Sodium. Sodium. What is responsible for generation of action potential? Sodium. Sodium. Yes, sodium. What is responsible for maintaining the resting membrane potential? Potassium. Sodium. Potassium. Sodium potassium ATPase pump is responsible for maintaining the resting membrane potential. So all these are going to be MCQs with this part. तो अब माइलिनेटेड नर्व फाइबर में क्या होगा? What is going to happen in a myelinated nerve fiber? Because you know that myelin sheath, it provides insulation. Myelin sheath, it provides insulation. Okay, देखो अभी यहाँ पे ये मेरा नॉर्मल है, तो यहाँ से यहाँ ऐसे चलेगी मेरी इम्पल्स एक नॉर्मल नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में. Because at all the points this axon is in communication with the extracellular fluid. So यहाँ के ions और यहाँ के ions के बीच में continuity है. They are not insulated with each other. ये दोनों एक दूसरे से connected हैं, separated हैं ये एक्सोलेमा से. But ions का flow हो सकता है, channels are there. Sodium potassium ATPase pump is there. Throughout the length of the axon यहाँ पे connectivity है, लेकिन myelinated axon में ये वाले जो पार्ट्स हैं यहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट है. सो द इम्पल्स इज गोइंग टू बी कंडक्टेड फ्रॉम वन नोड टू द अदर, This ways, this distance will be conducted faster as compared to this. If I have to go like this from side A to side B to side C to side D, तो डिस्टेंस धीरे धीरे कवर होगा. इफ आई हैव टू गो लाइक दिस, द डिस्टेंस इज गोइंग टू गेट कवर्ड फास्टर. सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस विल गेट कवर्ड फास्टर अगर आप जंपिंग वाली रेस करोगे इंस्टेड ऑफ गोइंग प्लेन. इसी को हम कंपेयर करते हैं हर्डल रेस से. जब आप हर्डल रेस कर रहे हो तो सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड इन फास्टर टाइम और इन लेस टाइम, is covered faster or in less time as compared to ये वाली रेस. So myelinated neurons में एक तो insulation रहेगा माइलिन शीट का और दूसरा impulse का conduction faster होगा. It will be around 20 times faster as compared to a non-myelinated neuron. Difference between non-myelinated neuron and myelinated neuron. Non-myelinated neuron में impulse conduction slow होगा, myelinated neurons में impulse conduction faster होगा. Why? Because myelin sheath is going to provide an insulation over here. So यहाँ पे ions एक दूसरे से nodes of Ranvier पे ही communicate कर सकते हैं because that is the place where myelin sheath is absent. इस conduction को बोलते हैं jumping conduction और saltatory conduction. This type of conduction, it is called jumping conduction or saltatory conduction. Let me show you some pictures now. Which phase is this? Polarized resting phase. Polarized resting. Now which phase it is? Depolarized. Yes. Polarized. सोडियम चैनल्स जहाँ पे क्लोज्ड हैं वो रेस्टिंग फेज होगी, जहाँ पे ओपन होंगे और सोडियम का इन्फ्लक्स होगा वो डीपोलराइजेशन होगा या एक्शन वाली स्टेज होगी. अगर हम एक फेज को रेस्टिंग बोल रहे हैं मींस नर्व कुछ काम नहीं कर रही है, तो दूसरी है कि नर्व एक्शन में है. जब स्टिमुलस की इंटेंसिटी ख़त्म हो जाती है तो सोडियम चैनल्स वापस क्लोज हो जाते हैं. ये डीपोलराइजेशन होने के बाद
जब स्टिमुलस पास हो गया है ए से बी, बी से सी साइड पे, सोडियम चैनल्स वापस क्लोज हो जाते हैं, दे बिकम इनएक्टिव अगेन. Stimulus causes sodium channels to open. Sodium ions diffuse into the cell, making the inside of the cell more positive. ये देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे क्या है हमारा, और रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हुआ है स्टिमुलस आने पे. देयर इज रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी. द एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन इज सेड टू बी डीपोलराइज्ड. हैव यू ऑल मेड योर नोट्स ऑन दिस और यू वांट टू राइट दीज पॉइंट्स? बोलो, आप लोगों ने लिखा है और यू वांट मी टू वेट फॉर 2 minutes? यस, मैम लिखा है आगे. लिखा है ना? यस. सो डीपोलराइजेशन में हमको यही याद रखना है कि सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम डिफ्यूज होगा इनटू द सेल, या इन्फ्लक्स होगा सोडियम का. जिस साइड पे सोडियम का इन्फ्लक्स होगा सेल का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा. हम बोलेंगे कि डीपोलराइजेशन हुआ है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हुई है. देखो रेस्टिंग नर्व फाइबर में, ध्यान से देखो इस डायग्राम को. रेस्टिंग नर्व में बाहर सोडियम ज़्यादा रहेगा, अंदर पोटेशियम ज़्यादा रहेगा. देखो ग्रीन वाले सोडियम आयंस हैं, ब्लू वाले पोटेशियम आयंस हैं. जब मैसेज आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, सोडियम अंदर आ जाएगा जब स्टिमुलस आएगी या जब मैसेज आएगा बोलेंगे. देखो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो रही है. आप मुझे बताओ सोडियम का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. और पोटेशियम का? Positive. पॉजिटिव. पॉजिटिव. ये दोनों कैटायंस हैं. व्हाट डू आई मीन बाय कैटायन? Positive. हाँ, Positive. यस, एन एटम विद पॉजिटिव चार्ज. सो ये एमसीक्यू में हम मिस्टेक करते हैं. हमको क्या लगता है कि अंदर का चार्ज नेगेटिव है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है तो पोटेशियम नेगेटिव होगा. नहीं, sodium ions and potassium ions, they both are cations. By cations I mean they both carry positive charge. मैंने हमेशा ये बात बोली है कि जब हम अंदर का नेगेटिव बाहर का पॉजिटिव बोलते हैं, सो इट इज़ द नेट चार्ज. दोनों का चार्ज पॉजिटिव होता है एक्चुअली, बट कंपैरिजन में अंदर का चार्ज कम होता है, तो हम बोलते हैं अंदर का नेगेटिव है बाहर का पॉजिटिव है. इट्स लाइक बाहर 50 रुपीज़ है और अंदर 20 रुपीज़ है. 20 रुपीज़ की भी अपनी पॉजिटिव वैल्यू है, बट 20 इज़ लेस देन 50, सो हम बोलते हैं कि अंदर का चार्ज कम है तो नेगेटिव बोलते हैं उसको, और बाहर का ज़्यादा है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि दोनों पॉजिटिव आयंस हैं, दोनों कटायंस हैं. सी दिस हाउ इट इज़ मूविंग नाउ. ये हो रहा है कंडक्शन. एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद इट्स गोइंग टू मूव फर्दर अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, और रीपोलराइजेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. देखो जिस डायरेक्शन में कंडक्शन हो रहा है, रीपोलराइजेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है. मतलब पीछे की नर्व जो कंडक्ट कर चुकी है वो रीपोलराइज होगी वापस. एमसीक्यू, कंडक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन चल रहा है, लेकिन रीपोलराइजेशन वापस चल रहा है टूवर्ड्स द एक्सॉन हिलॉक. लिखो ये पॉइंट. कंडक्शन या डीपोलराइजेशन अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन चल रहा है, ये भेज रहा है स्टिमुलस आगे, और रीपोलराइजेशन वापस रिस्टोर कर रहा है मेम्ब्रेन के पोलराइज स्टेट को. रीपोलराइजेशन इज रिस्टोरिंग बैक द मेम्ब्रेन्स ओरिजिनल पोलैरिटी. डीपोलराइजेशन इज अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन. इसमें मैम, यस, तो मैम डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन साइमल्टेनियसली चलते हैं. साइमल्टेनियसली चलते हैं. टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट, एक एक पॉइंट पे जैसे हमारा कंडक्शन आगे मूव होता जा रहा है, वैसे ही रीपोलराइजेशन होता जाता है मेम्ब्रेन का. मतलब ए साइड से बी साइड पे जब कंडक्ट हो गया, बी से सी पे हो गया, तो सी से बी, बी से ए, ये मेम्ब्रेन उतनी रीपोलराइज होती जाती है, बिकॉज इट हैज़ टू बी रेडी नाउ टू रिसीव द नेक्स्ट स्टिमुलस. देखो
ये कंडक्शन हो रहा है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसका और एक वर्ड क्या यूज करते हैं, एक्शन पोटेंशियल का प्रोपगेशन है। प्रोपगेशन मीन्स ट्रैवलिंग फॉरवर्ड। सो एमसीक्यूज में आपको ये वर्ड भी मिलेगा, या तो कंडक्शन मिलेगा या एक्शन पोटेंशियल का प्रोपगेशन हो रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। देखो, लेकिन नोटिस करो कि पीछे पीछे वापस रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो रही है, रिपोलराइजेशन हो रहा है। इसीलिए हम क्विकली एक ऑर्डर खत्म होने के बाद आप दूसरा ऑर्डर क्विकली फॉलो कर सकते हो। दिस इज वेरी फास्ट। ये कंडक्ट भी बहुत फास्ट होता है, रीपोलराइज भी फास्ट हो जाता है, एंड इट इज रेडी टू रिसीव अ स्टिमुलस अगेन। This is the speciality which nerve tissues have, which other cells of the body don't have. Conduction of this impulse, जिसकी वजह से बॉडी की कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज होती हैं और इतना फास्ट होती हैं। वोल्टेज क्रिएटेड सोडियम चैनल्स, दे रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन चार्ज। जैसे ही स्टिमुलस आएगी, लोकल डिपोलराइजेशन होगा, which causes the adjacent sodium channels to open. Depolarization travels down the nerve axon and is known as action potential. So एक जगह पे सोडियम का इन्फ्लक्स चालू होगा, उस जगह पे पोलैरिटी चेंज होगी, डीपोलराइजेशन होगा, और फिर ये आगे मूव करेगा। दैट इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स और कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। ये डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। दिस डायग्राम, अगर हम सिर्फ ये डायग्राम देखते तो बहुत डिफ़िकल्ट रहता था समझना, इसीलिए हमने पहले खुद के डायग्राम्स बना के और दूसरे डायग्राम्स देख के उसको समझा है। देखो, सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, देखो दोनों साइड से दिखाया है कि सोडियम अंदर आ रहा है। सो एक्चुअली ऐसा ही होता है, हम हमारे डायग्राम्स में सिर्फ एक साइड से ही बनाते हैं कि सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, बट यहाँ पे भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, तो यहाँ से भी सोडियम अंदर आएगा। सोडियम चैनल जब ओपन हो रहा है तो ये पूरा चैनल ओपन होगा, ऊपर वाली मेम्ब्रेन का भी, यहाँ पे भी, दोनों साइड पे मेम्ब्रेन्स में रहेंगे सोडियम चैनल्स। सो ये सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, देखो एट दिस साइट ए, इसीलिए पॉजिटिविटी बढ़ती है। यहाँ से ट्रैवल होगा बी को, बी से सी को, सी से डी को। ये तो हमारा एक्शन पोटेंशियल आगे प्रोपगेट हो रहा है, बट ये पीछे की मेम्ब्रेन को वापस रेडी होना है स्टिमुलस रिसीव होने के लिए, तो वापस बी टू ए ये ऐसे जाएगा। देखो, पॉजिटिव चार्ज वापस ऐसे जाएगा, तो ये वाली रिस्टोर होती जाएगी और ये वाली कंडक्ट करती जाएगी। मतलब हम बोलते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्शन हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिस्टोरेशन हो रहा है। काम खत्म हो गया यहाँ का, तो इनको वापस रिस्टोर कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी और काम है, तो यहाँ से कंडक्शन होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, कंडक्शन होगा, और पीछे रिस्टोरेशन होगा। देखो, आई पर्सनली लाइक दिस पिक्चर अ लॉट, बिकॉज इसमें दिखा रहा है कि रिस्टोरेशन पोटेशियम की वजह से हो रहा है और कंडक्शन सोडियम की वजह से हो रहा है, और कंडक्शन हमेशा आगे चलेगा अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, रिस्टोरेशन हमेशा उसके पीछे रहेगा। कंडक्शन विल ऑलवेज बी प्रिसीडिंग और रिस्टोरेशन उसके पीछे रहेगा हमेशा। मतलब पीछे का सेगमेंट का रिस्टोरेशन हो रहा है और आगे का सेगमेंट कंडक्शन कर रहा है। नाउ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये जो फर्स्ट डायग्राम है, इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सोडियम, कंडक्शन इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सोडियम, बट रिस्टोरेशन इज बिकॉज ऑफ पोटेशियम। दिस यू शुड अंडरस्टैंड कि रिस्टोरेशन पोटेशियम की वजह से हो रहा है और कंडक्शन और जनरेशन ये सोडियम की वजह से हो रहा है। देखो, अब इस डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें साइटोसोल जो है वो ऊपर का एक्सोप्लाज्म है और ये इंटरस्टिशियम है। व्हाई आई एम शोइंग यू दिस इज कि कभी कभी एमसीक्यू के डायग्राम में भी नीचे इंटरस्टिशियम रहता है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड रहता है और ये एक्सोप्लाज्म रहता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम बनाते हैं हमेशा डायग्राम वैसा रहेगा, इट कैन बी दिस वेज ऑल्सो। ये चीज़ समझ में आ रही है सबको? यस मैम। हाँ,
बेटा Yes, ma'am. एमसीक्यू के डायग्राम में ऐसा बना हुआ रहता है, ऐसा एनिमेशन नहीं रहेगा, बट आपको अपवर्ड एरो में दिखाते हैं कि सोडियम बाहर निकल रहा है। हमको हमेशा कैसी हैबिट रहती है कि सोडियम का इन्फ्लक्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन बनाने वाली, बट नहीं, यू हैव टू चेक दिस लेबलिंग कि इंटरस्टिशियम कहाँ पे दिखाया है और साइटोसोल या एक्सोप्लाज्म ये कहाँ पे दिखाया है, या इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहाँ पे दिखाया है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड। सो अब देखो डीपोलराइजेशन में सोडियम अंदर जा रहा है, देखो सोडियम अंदर जा रहा है, दिस विल बी इनफ्लक्स फॉर मी बिकॉज साइटोसोल ऊपर दिखाया है। एंड रीपोलराइजेशन में पोटेशियम बाहर आएगा, दिस विल बी इफ्लक्स फॉर मी बिकॉज बाहर नीचे का इज इंटरस्टिशियम। इट्स ऑपोजिट फ्रॉम व्हाट वी ड्रॉ, बट ये लेबलिंग के हिसाब से इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आपके एमसीक्यू में ऐसे डायग्राम्स पे यू हैव टू वेरी नाइसली चेक द लेबलिंग एंड देन आंसर अकॉर्डिंगली कि क्या हो रहा है। एंड दिस पर्पल वन इज सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन खत्म होने के बाद वो काम करने वाला है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। देखो जब डीपोलराइजेशन चल रहा है, रीपोलराइजेशन चल रहा है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप कुछ काम नहीं कर रहा है। इमीडिएटली आफ्टर रीपोलराइजेशन इट इज गोइंग टू डू द वर्क ऑफ रिस्टोरिंग द आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो हमेशा अपवर्ड एरो मतलब इफ्लक्स नहीं होगा, इसमें अपवर्ड एरो इनफ्लक्स है और डाउनवर्ड एरो इफ्लक्स है। That you have to be very careful of in the MCQs. अगर मैं एक सिंपल फ्लो चार्ट बनाऊं, when the neuron is not conducting any impulse, it is in a resting phase, मुझे ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। It is more permeable to potassium, nearly impermeable to sodium and also impermeable to negatively charged proteins। ये तीनों MCQs हैं। Exoplasm inside has high concentration of potassium MCQ, high concentration of negatively charged proteins inside MCQ, low concentration of sodium exoplasm में। Ionic gradient is maintained by active transport of sodium potassium ATPase pump MCQ 3:2 का रेशियो, 3 सोडियम और 2 पोटेशियम, सोडियम outwards, potassium inwards। Outside the axon contains a low concentration of potassium, high concentration of sodium and thus it forms a concentration gradient। ये polarity बनाता है या concentration gradient बनाता है। Outer surface possesses a positive charge while inner surface becomes negatively charged, इसीलिए बोलते हैं कि membrane polarized है। And this electrical potential difference across the membrane is called resting membrane potential or only resting potential RP, and it is minus 70 millivolts for the nerve fiber। ये सारे points MCQs हैं resting membrane potential को लेकर। Now I don't want you to mug up these things। ये चीज़ें अगर आप by heart learn करोगे तो आपको आपकी एग्ज़ाम आने तक कभी learn नहीं रहेगी। बट ये डायग्राम्स जो हम हाथ से बनाते हैं फटाफट, अगर ये आपको समझे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको MCQs में मार्क करने के लिए समझेगी कि क्या क्या होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। ये कौन सा फेज है? ओके, लिखा ही हुआ है आंसर, या रीपोलराइजेशन। अगर मैंने ये वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा रहता था और ऐसे ही भी आपको ये चार्ट दिखाया रहता था तो आपको समझ में आना चाहिए था कि ये रीपोलराइजेशन है। बिकॉज देखो यहाँ लिखा हुआ है ये सेल एक्सटीरियर है और ये सेल इंटीरियर है। इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। हाँ, तो इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम बहुत क्लियरली दिख रहा है। ऐसे MCQs आते हैं, they'll give you 2 channels और किसी भी एक का इफ्लक्स या इनफ्लक्स दिखाएंगे and they'll ask you which phase it is। Now in that you have to be careful of these labelings कि कौन सा एक्सटीरियर है और कौन सा इंटीरियर है, उसके हिसाब से आप बोलोगे कि ये कौन सा फेज है। एंड ऑब्वियसली पोटेशियम चैनल अगर ओपन है तो ये रीपोलराइजेशन होगा, अगर सोडियम चैनल ओपन होता तो ये डीपोलराइजेशन होता। डीपोलराइजेशन। यस, देखो
इस डायग्राम में मुझे ये बताना है कि रेस्टिंग न्यूरॉन में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप एक्टिव रहता है। ऐसे भी एमसीक्यूज आते हैं। एक्शन पोटेंशियल के टाइम पे कौन सा पंप एक्टिव रहेगा या कौन सा चैनल एक्टिव रहेगा? सोडियम चैनल। और रीपोलराइजेशन के टाइम पे कौन सा चैनल एक्टिव होगा? पोटेशियम। और वापस चार्ज का रिस्टोरेशन करना है, वापस सोडियम और पोटेशियम का रिस्टोरेशन करना है, तो वापस कौन एक्टिव रहेगा? बोलो। सोडियम पोटेशियम पंप। हाँ, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। देखो ये फेज में दिखा रहे हैं सोडियम चैनल खुला हुआ है, रीपोलराइजेशन में दिखा रहे हैं पोटेशियम चैनल खुला हुआ है, और चार्ज का रिस्टोरेशन कर रहे हैं या आयोनिक बैलेंस का वापस रिस्टोरेशन कर रहे हैं, तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम कर रहा है। रेस्टिंग फेज में भी सिर्फ यही काम करेगा, पर ये पूरा टाइम काम नहीं करता है। रेस्टिंग फेज में जब जब बैलेंस बनाने की ज़रूरत आती है तब काम करता है। बॉडी ऐसे ही अपना एटीपी खर्चा नहीं करती है। अगर बैलेंस बना हुआ है तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम नहीं करेगा। जहाँ पे भी बैलेंस बिगड़ेगा वो बैलेंस बनाएगा, बट यहाँ पे तो बैलेंस बिगड़ा हुआ ही है आफ्टर रीपोलराइजेशन, सो इट हैज़ टू एसेंशियली वर्क टू गेट द बैलेंस बैक। एक बार बैलेंस वापस मेंटेन हो गया तो इट कैन ऑल्सो बी इनएक्टिव फॉर सम टाइम, जब तक बैलेंस बिगड़ता नहीं है। मैम डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन एट ए टाइम होंगे क्या? साइमल्टेनियसली होंगे, लेकिन डीपोलराइजेशन हमेशा आगे चलेगा रीपोलराइजेशन से। एक एक साइड पे डीपोलराइजेशन पहले होगा, जैसे साइट ए पे होगा तो ए से बी के पास जाएगा, मतलब डीपोलराइजेशन पहले हुआ है, उसके पीछे रीपोलराइजेशन होगा। मतलब दूसरे वर्ड्स में बोलती हूँ कि पहले एक्टिविटी चालू होगी, बाद में रिस्टोरेशन होगा मेम्ब्रेन का वापस। समझ रहा है? ऑर्डर मिलने पे, स्टिमुलस मिलने पे एक्टिविटी पहले चालू होगी, तो डीपोलराइजेशन पहले चालू होगा और पीछे पीछे रिस्टोरेशन करते जाएंगे तो रीपोलराइजेशन होता जाएगा। किसी को कुछ डाउट है अभी इतने पोर्शन में? नो मैम। क्लियर समझा है सबको? किसी को कुछ भी डाउट है तो बेटा बोलो। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। डोंट थिंक कि दूसरा कोई क्या सोचेगा। Can you all take a plain paper and make the phases of resting potential, depolarization and repolarization फटाफट? वो सोच के देखो एक बार, आपको समझेगा कि आप रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या डायग्राम बनाओगे, डीपोलराइजेशन में क्या बनाओगे और रीपोलराइजेशन में क्या बनाओगे। ऑल ऑफ यू। इफ द आंसर इज येस, दैट मीन्स आपको समझा है। यस मैम। यस। ये देखो, ये एक एक साइड पे जब जाएगा ऐसे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक एक साइड पे मूव हो रहा है, तो ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है मेरा। सो इसमें इम्पल्स कंडक्शन को टाइम लगेगा, वेराज यहाँ पे इट्स गोइंग टू मूव फास्टर। यहाँ से यहाँ आएगा, इट्स गोइंग टू मूव फ्रॉम नोड्स ऑफ रैनवियर टू नोड्स ऑफ रैनवियर, ऐसा एमसीक्यू आता है। इन अ माइलिनेटेड न्यूरॉन इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है? फ्रॉम वन नोड टू द अदर, फ्रॉम वन नोड टू द अदर, फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड, दिस नोड टू दिस नोड, ऐसे होगा। सो इट्स गोइंग टू मूव फ्रॉम नोड टू नोड, नोड टू नोड, वेराज इसमें टाइनी टाइनी स्टेप्स रहेंगे, एक साइड से दूसरे साइड, दूसरे साइड से तीसरे साइड। सो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में इम्पल्स कंडक्शन फास्टर होगा। इसी को साल्टेटरी कंडक्शन भी बोलते हैं या जंपिंग कंडक्शन भी बोलते हैं। So what is the difference? Continuous versus saltatory conduction. Continuous conduction ये unmyelinated fibers में होगा MCQ. Continuous conduction is step by step depolarization of each portion of the complete length along the axon या axolemma. Saltatory conduction is going to be depolarization only at nodes of Ranvier, where there is a high density of voltage gated ion channels. बाकी जगह पे वो इंसुलेटेड रहेंगे।
current will be flowing from node to node, MCQ, in saltatory conduction, whereas step by step in continuous conduction. Unmyelinated fibers में step by step carry होगा, saltatory conduction में node to node jump होगा, jumping potential. ये पॉइंट्स लिख लेना आपके पास. We've seen all this repolarization. Yes, see this point. Repolarization restores the negative charge inside the cell. ये हमने देखा है. Until repolarization occurs, a neuron cannot conduct another impulse. So ये जो टाइम लैग होता है जब तक रिपोलराइजेशन हो वापस और रिस्टोरेशन हो आयंस का, पोटेशियम अंदर ज़्यादा और सोडियम बाहर ज़्यादा, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड. तो तब तक न्यूरॉन दूसरा इम्पल्स लेने के लिए रेडी नहीं रहता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड. आफ्टर रिपोलराइजेशन अकर्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर रिस्टोर्ड यूजिंग द सोडियम पोटेशियम पंप्स. तो एक्सेस सोडियम को बाहर भेजेगा और पोटेशियम को अंदर लाएगा. 3 सोडियम्स आर पम्प्ड आउट, 2 पोटेशियम्स आर पम्प्ड इन. देखो MCQ. Why I am telling you these different type of statements? Because ये confuse होते हैं. See, sodium is the main extracellular cation. आपको पूछेंगे अभी sodium is what? Intracellular cation or extracellular cation? Do you understand this term now? Sodium will be extracellular cation. Yes, sir. Yes, and potassium will be the main intracellular cation. ये दोनों cations ही होंगे, दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले ही होंगे, पर सोडियम बाहर है, पोटेशियम अंदर है. और अंदर बिकॉज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, इसीलिए अंदर का चार्ज नेगेटिव हो जाता है ज़्यादा. देखो ये वही फ्लो चार्ट है. ये फ्लो चार्ट अभी आपको बनाना आना चाहिए. पोलराइज स्टेट से डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन से कंडक्शन, उसके बाद रीपोलराइजेशन, एंड रीपोलराइजेशन से रीस्टोरिंग द आयन कॉन्सेंट्रेशन. या सी -70 से हम चालू करते हैं. ये थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होता जाता है. -55 इज़ द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल. इतना मिनिमम लगता है ताकि पीक पे जा सके, सोडियम अंदर आ सके, सोडियम चैनल पूरी तरीके से खुल सके और सोडियम का इन्फ्लक्स हो सके. सो -55 इज़ द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल. ये +0 है और ये +30 तक आया है. ये पीक एक्शन पोटेंशियल है. इसके बाद ये वापस डिक्रीज होता जाएगा, तो ये रीपोलराइजेशन होगा. और ये -70 से थोड़ा नीचे गया है और तो ये हाइपर पोलराइजेशन है. इस ग्राफ में देखो -70 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, ये आपको पता है. रेस्टिंग से जब ये ऊपर जा रहा है तो ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्लैंटिंग लाइन, ये वाला स्लोप डीपोलराइजेशन होगा. ये वाला स्लोप डीपोलराइजेशन होगा. ये वापस नीचे आने वाला स्लोप रीपोलराइजेशन होगा. और जब ये -70 से थोड़ा और नीचे चला गया है तो ये हाइपर पोलराइजेशन होगा. जब ये -70 से -90 पे आ जाता है तो ये हाइपर पोलराइजेशन होगा. आई एम गिविंग यू 2 minutes. ऑल ऑफ यू डू दिस ग्राफ. ये आप खुद से करोगे तो आपको समझेगा. यहाँ पे आप 0 के बाद लिखो -10, -20, -30, -40, -70 तक लिखो और फिर यहाँ से चालू करो आपका. चलो क्विकली. ये वाले स्लोप पे आप लिखोगे डीपोलराइजेशन. ये ऊपर जाने वाले स्लोप पे ये डीपोलराइजेशन है जब पॉजिटिव हो रहा है चार्ज. पॉजिटिव से फिर से जब नीचे आ रहे हैं तो ये रीपोलराइजेशन होगा. अब डीपोलराइजेशन के साथ आप यहाँ पे सोडियम भी लिख सकते हो, बिकॉज सोडियम की वजह से डीपोलराइजेशन होता है. रीपोलराइजेशन के वाले स्लोप पे आप रीपोलराइजेशन के साथ पोटेशियम लिख दो.
बिकॉज पोटेशियम की वजह से रीपोलराइजेशन हो रहा है. हाइपर पोलराइजेशन भी पोटेशियम की वजह से ही हो रहा है. और ये -55 इज द थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेशन. मतलब हर कोई स्टिमुलस, हर छोटा सिग्नल मेम्ब्रेन को एक्साइट नहीं करता है, न्यूरॉन को एक्साइट नहीं करता है. वो एक्चुअली उतने पोटेंशियल का चाहिए कि न्यूरॉन एक्साइट हो और उसको कंडक्ट करे. Done, ma'am. Okay. Difference between myelinated and non-myelinated axon. First point is very clear. Myelin sheath is a fatty sheet which is produced by Schwann cells. तो यहाँ पे axon fiber को वो enclose करेगी myelin sheath, यहाँ पे enclose नहीं करेगी. This myelin sheath is going to serve as an electrical insulator. यहाँ पे ऐसा electrical insulation नहीं रहेगा. यहाँ पे it will help in conduction of faster nerve impulse. यहाँ पे nerve impulse slowly conduct होगी. और उनका location, they are mostly found where? लिख लो ये points, myelinated neurons और non-myelinated neurons. So usually the myelin sheath is present around the axon only. So हम बोलते हैं myelinated axon और non-myelinated axon. Usually भी नहीं. Always myelin sheath in a neuron is present around the axon. So more specific बोलना होगा तो बोलेंगे myelinated axon and non-myelinated axon. Quickly write down these 3-4 points. और ये कंसेप्चुअली आपको समझ में आने चाहिए, इनको बाय हार्ट लर्न नहीं करना है. डन. चलो, electrical synapse and chemical synapse. Difference between electrical synapse and chemical synapse. We'll do one thing, otherwise synapse का portion कल continue करते हैं. I want to discuss some points on the synapse. Or should I continue? बोलो. Ma'am, call. Yes, ma'am, we'll continue tomorrow. Okay, because I want to discuss this also in detail थोड़ा सा, जितना लिया है.